نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، جشن عید میلاد النبی حضرت اللہ مولا اخلاق میں صاحب قبلہ، سرزمین کیچو ٹانڈا، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام کی پیشانیوں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت آدم کی پیشانی میں چمکا، شیش کی پیشانی میں چمکا، نوح کی پیشانی میں سبحان اللہ، دانیال کی پیشانی میں چمکا، زکریا و یحییٰ کی پیشانی میں چمکا، یعقوب و یوسف کی پیشانی میں چمکا، موسیٰ و عیسیٰ کی پیشانی میں چمکا۔ یہ نور پاک رحموں میں، پاک سلبوں میں منتقل ہوتا رہا۔ پیارے ہر نبی، ہر رسول میرے نبی کی آمد سے پہلے میلاد پڑھتا رہا، میرے نبی کی آمد کا چرچا کرتا رہا۔ حضرت آدم نے میرے نبی کا میلاد نبی کے آنے سے پہلے پڑھا۔ نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا یہی تو میلاد ہے، نبی کی آمد کا ذکر کرنا یہی تو میلاد ہے، نبی کی پیدائش کے معجزات بیان کرنا یہی تو میلاد ہے۔ حضرت آدم نے ساری زندگی کہا کوئی آنے والا ہے، شیش بولتے رہے کوئی آنے والا ہے۔ حضرت نوح نے 950 سال تک لوگوں کو بتایا کوئی آنے والا ہے۔ زکریا نے کہا کوئی آنے والا ہے، یحییٰ نے کہا کوئی آنے والا ہے، یعقوب نے کہا کوئی آنے والا ہے، یوسف نے کہا کوئی آنے والا ہے، موسیٰ نے کہا کوئی آنے والا ہے، عیسیٰ نے کہا کوئی آنے والا ہے۔ جس کی آمد کی بشارت ہے کب 1,24,000 انبیاء کرام نے دی ہے، وہ آنے والا 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت میں مکہ کی دھرتی پر عبداللہ کے گھر میں آمنہ بی بی کی گود میں جلوہ وار ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ آیا ہے تو دنیا میں اجالا چھایا ہے، وہ آیا ہے تو دنیا میں بہاریں آئی ہیں، وہ آیا ہے تو دنیا میں روشنی ہوئی ہے، وہ آیا ہے تو بچی کو زندگی ملی ہے، وہ آیا ہے تو عورت کو وقار ملا ہے، وہ آیا ہے تو انسان کو انسانیت ملی ہے، وہ آیا ہے تو آدم کو آدمیت ملی ہے، وہ آیا ہے تو ساری کائنات میں بہار آئی ہے، اور انہیں کی آمد کا صدقہ ہے آج تک یہ بہار کا ماحول ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جواب۔ تو کائنات میں بہار سبحان اللہ، انہیں کی آمد کا صدقہ ہے۔ اور پیارے آپ جانتے ہیں کاریگر ہزاروں چیزیں بناتا ہے، لیکن کسی ایک چیز پر وہ ناز کرتا ہے۔ جی، مستری ہزاروں مکان بناتا ہے، ہزاروں بلڈنگیں بناتا ہے، بے شک، لیکن کوئی بلڈنگ ایسی ہوتی ہے جس پر مستری کو ناز۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بولیے۔ کوئی بلڈنگ ایسی کہ دیکھیے یہ میری کاریگری کا شاہکار ہے۔ کتنا ناز کیا ہوگا اس مستری نے جس نے دہلی کی جامع مسجد، جی جی، پیلی بھیت کی جامع مسجد، لال قلعہ، تاج محل، کاریگر کو اپنی کسی چیز پر ناز۔ ایک پیر کے ہزاروں مرید ہوتے ہیں جی، لیکن پیر کو کسی ایک مرید پر ناز ہوتا ہے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ ایک استاد کے ہزاروں شاگرد، لیکن کوئی ایک شاگرد ایسا ہوتا ہے جی، جس شاگرد پر استاد ناز کرتا ہے۔ بے شک، ہزاروں مرید ایک پیر کے، لیکن کوئی ایک مرید ایسا جس پر پیر ناز کرتا ہے، بے شک، کتنا ناز کیا ہوگا سرکار غوث اعظم کے پیر نے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ عثمان ہارونی کو ناز تھا اپنے مرید خواجہ معین الدین اجمیری پر، بے شک، خواجہ کے ہزاروں مرید سبحان اللہ۔ ناز تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہزاروں مرید، لیکن بختیار کاکی کو ناز تھا بابا فرید گنج شکر پر، بابا فرید گنج شکر کے ہزاروں مرید، لیکن ناز تھا علاء الدین صابر پاک پر۔ پیارے سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ احمدی کے ہزاروں مرید، لیکن آل رسول احمدی کو ناز تھا بریلی کے تاجدار امام عشق و سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو الحسین نوری میاں کے ہزاروں مرید، لیکن ناز تھا اس لوری کو بریلی کے تاجدار سرکار مصطفیٰ رضا مفتی اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، کرامت حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر کے ہزاروں مرید، لیکن کوئی ایک مرید ایسا ہوتا ہے جس پر
नाज होता है बेशक नाज होता है। और प्यारे क्यों ना हो इन मुरीदों पर नाज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने किताब में पढ़ा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में बाबा फरीद ने 12 साल खिदमत की। सुभान अल्लाह 12 साल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 12 साल की लास्ट आखिर रात, 12वें साल की खिदमत की आखिर रात ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आवाज दिया रात को, बेटा फरीद उठो, नमाज तहज्जुद का वक्त हो गया। सुभान अल्लाह। तैयारी करो, नमाज तहज्जुद पढ़नी है। प्यारे ये कल का पीर था जो मुरीद को तहज्जुद पढ़वा रहा है। बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह। कल का जो मुरीद को नमाज पढ़वा रहा है, बेशक नमाज तहज्जुद का आदी बना रहा है, ये कल का पीर था जो मुरीद को शरीयत सिखाता था। ये कल का पीर था जो मुरीद को कुरान पढ़ाता था। ये कल का पीर था जो मुरीद को तरीक़त सिखाता था। ये कल का पीर था जो मुरीद को नमाज का पाबंद बनाता था। ये कल का पीर था जो मुरीद को शरीयत के अहकाम पर चलाता था। ये कल का पीर था जो अपने मुरीद को पाबंदे शराब बनाता था। और ये आज का पीर है। प्यारे बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। आज का पीर शरीयत सिखाए, इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं करता मैं, तरीक़त सिखाए, नमाज पढ़वाए, वो जब खुद ही नहीं पढ़ता है तो मुरीद से क्या पढ़वाए। बेशक खुद ही नहीं पढ़ता, खुद ही नहीं पढ़ता, शरीयत खुद ही नहीं आती। पढ़े हैं, नमाज का टाइम हुआ, बच्चियां, दोशीदाएं, खवातीन खिदमत कर रही हैं, हाथ पैर मल रही हैं। अदान हुई, किसी ने कहा पीर जी नमाज अदान हो गई। बोला पर्दा खींच दो, किवाड़ बंद कर दो। कहा नमाज का हम तो वहीं पढ़ते, हम तो वहीं पढ़ते। कहाँ पीर जी कहाँ? बोला खाना काबा। मौलाना आ गए तो मौलाना जाओ, हमारी तुम्हारी बनती कब है? हमारी लाइन अलग, तुम्हारी लाइन अलग। हम तुम शरीयत वाले हो, हम तरीक़त वाले हैं। प्यारे हकीकत तो ये है जो शरीयत वाला होगा वही तरीक़त वाला। बेशक सुभान अल्लाह। जो शरीयत वाला वही तरीक़त वाला, तरीक़त वाला। सूफिया इदाम ने मिसाल दी है बालों की जी। शरीयत और तरीक़त की मिसाल ऐसे, सर में बाल शरीयत और बालों में मांग तरीक़त। तरीक़त बेशक। बाल शरीयत, बालों में मांग ये तरीक़त। जी। अगर गंजा कंगा लेके मांग निकाले तो निकले नहीं, नहीं गंजा अगर बालों पर आड़ी पर कंगा चलाए अपनी गंज पर तो मांग निकलेगी नहीं, नहीं निकलेगी। जिस तरह गंज पर मांग नहीं निकल सकती, इसी तरह बगैर शरीयत के तरीक़त वाला नहीं हो सकता। अगर तरीक़त लेना है तो पहले शरीयत ले ले, पहले शरीयत पर अमल कर ले। जब शरीयत वाला हो जाएगा तो अल्लाह तुझे तरीक़त भी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल का पीर था, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान। से तहज्जुद पढ़वा रहा है। पीर ने कहा बेटा फरीद उठो, नमाज तहज्जुद का टाइम हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा फरीद उठे, सरकार वुजू फरमाना है। जी बेटे वुजू करना है। फरीद उठे, गल्ले से सुराही से मटके से पानी लिया। ठंडी का मौसम, देखा पानी बहुत ठंडा है, कलेजा थाम कर रह गए। फरीद ने अपने से कहा फरीद पानी बहुत ठंडा, इतने ठंडे पानी से तुम अपने पीर को वुजू कराओ, ये तुम्हारी गैरत को गवारा कैसे होगा? फरीद अभी बहुत टाइम है नमाज में, उठो और ये पानी अपने पीर के लिए गर्म करके कहीं से लाओ। प्यारे रात का समय है, ठंडी का मौसम है। मुरीद लोटे में पानी लेता है और पानी लेकर अपने स्थान से, अपनी क़ियाम गाह से, अपने मस्कन से निकल जाता है। प्यारे वो रात का आखिर पहर है और ये मुरीद हाथ में पानी का बर्तन लिए बस्ती में डगर डगर, नगर नगर, गली गली, कूचा कूचा, दरवाजा दरवाजा घूम रहा है। किसी मकान से आग जलती हुई दिखाई दे, किसी मकान में चहल पहल नजर आए तो मैं आवाज देकर घर वालों को उठाकर दरवाजा खुलवाकर आग जलवाकर अपने पीर के वुजू के लिए पानी गर्म करा लूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो मुरीद था बाबा
फरीद कहते हैं कि मैं एक चलता चला था, एक दरवाजे पर जाकर ठहर गया। मैंने देखा मकान से आग जलने के आसार नमूदार हो रहे हैं, मकान में कुछ चहल पहल नजर आ रही है। मैंने उसी दरवाजे पर जाकर रुका, दस्तक दी, आवाज दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? फरीद कहते हैं मैंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, मैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का खादिम फरीद हूँ। कैसे आना हुआ फरीद? कहा मेरे पीर को नमाज तहज्जुद पढ़नी है और मुझे अपने पीर को वुजू कराना है, पानी बहुत ठंडा है, मैं पानी लेकर आया हूँ, आपका एहसान होगा मुझ पर अगर मेरे पीर के वुजू के लिए तुम जरा पानी गर्म कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरीद कहते हैं इतना सुना, अंदर से एक खातून चली, दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला मैंने हाथ बढ़ाकर पानी का बर्तन पेश किया, खातून अल्लाह आपको कनीज का फातिमा खातून ने जन्नत का सदका अता फरमाए। ए खातून मुझ पर एहसान करो, मेरे पीर के लिए पानी गर्म कर दो। उस औरत ने देखने के लिए कितना शैदाई है अपने पीर का, ये अपने पीर का कैसा मोहब्बत, कैसा दीवाना है, उसने आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए कहा फरीद पानी तो गर्म हम कर ही देंगे, लेकिन पानी गर्म करने से पहले तुम्हारी आंख हमें बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है, सुभान अल्लाह, लग रही है तुम्हारी आंख। बाबा फरीद ने कहा बिला वजह की बात ना करो, हम जो कह रहे हैं हमारा काम करके हम परेशान करो। औरत ने कहा नहीं फरीद पानी तो गर्म होगा लेकिन बगैर मुआवजे के नहीं, बगैर उजरत के नहीं, बगैर बदले के नहीं। कहना क्या चाहती हो? तो उस औरत ने कहा था फरीद आग तुम्हारी अच्छी लगती है, तुम हमें आग दो, हम तुम्हारे पीर के लिए गर्म करके तुम्हें पानी दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत ने कहा आग। फरीद ने कहा वाकईतन चाहिए। फरीद उस वक्त तक पानी गर्म करने का कोई काम नहीं है जब तक कि आग देने का वायदा नहीं। फरीद ने पानी का बर्तन बढ़ाया, कहा इसे तुम चूल्हे पर रखो, अंदर से छुरी या चाकू लेकर आओ, हम तुम्हें आग दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। औरत ने वो पानी चूल्हे पर रखा, अंदर से छुरी ली, चाकू लिया फरीद के पास, फरीद लो अपनी आंख हमारे हवाले करो। फरीद ने छुरी लेकर आग के घड़े में छुरी की नोक डाली, जोर देकर दबाकर आग का ढेला खींचकर बाहर। प्यारे वो पीर क़ियामगाह में बैठकर सारा मंजर देख रहा है, इधर मुरीद, खादिम, गुलाम पानी के बदले में औरत को आग दे रहा है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपनी क़ियामगाह में बैठकर ये सारा मंजर देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। औरत मेरे फरीद से पानी के बदले में आग मांग रही है, मेरे फरीद ने आग देने का वायदा किया है। औरत ने पानी रखा है, फरीद देख रहे हैं और ख्वाजा देख रहे हैं। औरत अंदर से छुरी लेकर चली है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुलाहजा कर रहे हैं। फरीद के हाथ में आकर उसने छुरी दी है, ख्वाजा देख रहे हैं। फरीद ने छुरी लेकर आग के गड़े में, सुराख में, आग गड़े में उसने छुरी की नोक को दागा है। फरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देख रहे हैं। फरीद ने आग का ढेला निकाला, पकड़कर खींचा और उठाकर औरत की हथेली पर रख दिया। मुझ खादिम की तू आग ले ले, लेकिन मेरे आका, मेरे मुर्शिद, मेरे पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काके लिए बड़ी जल्दी से तू पानी गर्म कर दे। औरत सुभान अल्लाह, सुभान। औरत ने फरीद की आग का ढेला हाथ पर रखा और बड़ी जल्दी से पानी गर्म करके फरीद के हवाले किया। इधर फरीद ने आग पर पट्टी बांधी, गर्म पानी लिया और बड़ी तेजी के साथ अपने मुर्शिद की बारगाह में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में पहुंचे। सरकार पानी ले आया हूँ, हुजूर वुजू फरमा ले। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उठे, अब शागिर्द, अब खादिम अपने मखदूम को, मुरीद अपने पीर को वुजू करा रहा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हाथ धोए, धीरे से मुस्कुराकर, नजर उठाकर फरीद की आग की तरफ देखा और मुस्कुराकर फरमाते हैं फरीद आग पर पट्टी कैसी है? आग पर पट्टी क्यों बनी है? तो फरीद धीरे से अर्ज करते हैं सरकार आंख आ गई है, आंख आ गई है। समझते हैं आप आंख आ गई है, यानी जब आग दुख आती है तो एक मुहावरा है, बोला जाता है आंख आ गई है। जब आशोबे चश्म होता है बोला जाता है आंख आ गई है। किचड़ा जाती है बोला जाता है आंख आ गई है। फरीद ने कहा सरकार आंख आ गई है, इसलिए मैंने पट्टी बांध ली है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी धीरे से मुस्कुराकर फरमाते हैं फरीद आंख आ गई। जी हुजूर आंख आ गई है। फिर आपने कहा फरीद आंख आ गई। इधर फरीद फिर कहते सरकार आंख आ गई है। तीसरी मत
मर्तबा, समझ रहे हैं मतलब समझ रहे हैं। इधर मुरीद कहता है सरकार आंख आ गई है, उधर फरीद का पीर बोलता है फरीद आंख आ गई है। तो फरीद तो कहना ये चाहते थे, छिपाना चाहते थे, सरकार आंख दुख आई है इसलिए मैंने आंख पर पट्टी बांध ली है। और उधर पीर कहते हैं फरीद दुखी थी लेकिन अब ठीक हो रही है, आंख आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा का फरीद आंख आ गई, जी सरकार आंख आ गई। दोबारा फरमाया फरीद आंख आ गई, सरकार आंख आ गई। तीसरी मर्तबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा फरीद आंख की पट्टी खोल दे, आंख वापस आ गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान औलिया इकराम, जश्न ईद मिलादुल नबी हजरत अल्लाह मौला अखलाक में साहब क़िबला, सरज़मीन का जुटाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरीद पट्टी खोल दे, आंख आ गई। कसम खुदा की, इधर खादिम ने मखदूम का हुक्म सुनकर आंख से पट्टी खोली। क्या बात है, कसम रब्बे काबा की, देखा तो आंख के घड़े में आंख का ढेला जैसे था वैसे ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो पीर थे, कौन थे? पीर। और आज के पीरों का तो हाल मत पूछिए, अल्लाह अपना फजल फरमाए। दो पीरों के दो मुरीदों में झगड़ा हो गया जी। कारी जाकिर साहब निकल रहे थे, कहा हजरत जरा ठहरिए। कहा क्या हुआ? बड़ी बात खराब हो गई। का कुछ तो बताओ। कब बात ये खराब हो गई, ये मेरे पीर के बारे में, मैं इसके पीर के बारे में। कहा क्या? कि ये कहता है तेरा पीर अच्छा नहीं मेरा अच्छा, और मैं कहता हूं तेरा अच्छा नहीं मेरा अच्छा। कारी साहब दोनों के पीरों को जानते थे। कहा आप दोनों को हजरत पहचानते, जरा फैसला कर दीजिए किसका अच्छा। तो कारी साहब ने कहा हम खूब जानते हैं तुम्हारे दोनों के पीरों को, वक्त बहुत कम है, मैं बड़ी जल्दी में हूं। फैसला नस्र में नहीं बल्कि नज़्म एक शेर में मैं तुम दोनों के पीरों का फैसला करेगा। बहुत अच्छा हजरत, शेर भी हो जाएगा फैसला भी हो जाएगा। का सुनो, तुम दोनों अपने पीरों का हाल पका लो दूध में चावल, इसी को खीर कहते हैं। पका लो दूध में चावल, इसी को खीर कहते हैं। और जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। हजरात ये पीरों का हाल है। एक वो पीर था, वो मुरीद था, प्यारे फरीद ने अपने पीर को वुजू कराने के लिए पानी गर्म करने के बदले में अपनी आंख दे दी। और प्यारे जब ये कमाल, जब ये खिदमत करने के बाद अल्लाह ने अपने बंदे को वो कमाल अता फरमाया। प्यारे बैठे ये पाक पटन में और अपने मुरीदों को जहां पाए वहां देख ले, अपने चाहने वालों को जहां से चाहे वहां से देख ले। यही बाबा फरीद गंज शकर है। एक दिन अपने पीर की बारगाह का इरादा करके अपने स्थान से चले, अपनी क़ियामगाह से चले, अपनी खानकाह से चले, जिक्र इलाही करते हुए बियाबान सहराओं में, लकतक मैदानों में, शमशान जंगलों में सफर तय करते हुए हजरात जंगल में एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। जिक्र इलाही में मशगूल है। कुछ देर सोचा आराम भी हो जाएगा, बैठकर जिक्र इलाही भी हो जाएगा। फरीद एक दरख्त के नीचे बैठे हुए जिक्र इलाही कर रहे थे। एक परिंदा उड़ता हुआ आया और उसी शाख पर आकर बैठा और वो भी चहचहाने लगा। फरीद ने एक बार नजर उठाकर देखा, परिंदा चहचहा रहा है। दोबारा फिर देखा, तीसरी मर्तबा फरीद ने फिर देखा और तीसरी मर्तबा देखकर फरीद फरमाते हैं ए मर क्यों नहीं जाता? मैं जिक्र इलाही कर रहा हूं और तू मेरे जिक्र में खलल डाल रहा है, मर क्यों नहीं जाता? इतना फरमाया फरीद ने, वो परिंदा वहीं शाख से तड़पा, जमीन पर आकर तड़प कर ठंडा हो गया, मर गया। एक जुमले पर मर क्यों नहीं जाता? फरीद ने कुछ देर जिक्र इलाही किया, उसके बाद परिंदे पर नजर डाली और उन्हें एहसास हुआ। फरीद सोचने लगे, फरीद तुमने बुरा किया, तुम जिक्र कर रहे थे अपनी जबान में और ये परिंदा खुदा का जिक्र कर रहा था अपनी जबान में। तुम भी जाकिर थे, परिंदा भी जाकिर था, तुम भी खुदा का जिक्र कर रहे थे, परिंदा भी अपनी जबान में खुदा का जिक्र कर रहा था। फरीद तुमने बुरा किया, एक जाकिर
ذاکر نے دوسرے ذاکر کو شاخ سے گرا کر ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت فرید کو جب احساس ہوا، فرید کو جب خیال آیا تو فرید کے ہاتھ میں جو تسبیح تھی وہی تسبیح اپنے اس پرندے کو اوپر گھمائی اور کہا اے پرندے میں نے اچھا نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسا ہی ہو جا۔ قسم خدا کی ادھر وہ تسبیح کے دانے پرندے کے بازوؤں پر پہنچے، ادھر پرندہ پھڑپھڑایا، زمین سے اڑا اور اسی شاخ پر جا کر بیٹھا۔ فرید اب وہاں سے آگے بڑھے تو آج ایم پی میں جو شہر جھانسی ہے، بڑا مشہور شہر ہے پیارے، یہ اس دور میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جھانسی۔